Thank you everyone for coming for this documentary screening. I hope you people learned a lot of interesting things from this high anxieties and the mathematics of chaos. So if you have any question, we can discuss. Any remark, uh, any question related to this, I would like to discuss. So, No question. how was that overall? I think I've already watched this documentary, but Mm-hmm. I forgot about that. And Okay. thank you for making it fresh again Okay. and making me anxious again. Okay. Okay. Is this anxiety good or bad? What do you think about that? Or Well, I think I see some positive side into anxiety too. But there are good anxieties, which means cause a kind of unrest in us, and we are able to do something. Without Mhm. anxiety, Mhm. we don't know that where the problem is. And sometimes I see that pain is also good Okay. because it tells that something is wrong about your body. Mm-hmm. So far as these environmental issues are concerned, and they can be alarming because means we can destroy Mm-hmm. what was so precious to us. Mm-hmm. As the last scientist was saying that Mm-hmm. we cannot put that much ice back. Yeah, you're right. We cannot give it back to our earth. That thing is really alarming. Otherwise, means it is telling us Mm-hmm. to do something, and if we have time. So this is how means I Okay. sometimes and mostly people Mm-hmm. are the people say that I try to see consciously try to see the silver lining in the dark cloud. Mm-hmm. Okay. And how do you see this uh, thing of this ride of optimism and nihilism and this pessimism, this over the like almost. Well, I remember when I watched this documentary for the first time. Mm-hmm. So I was thinking that the seeing order in the universe and predicting order in the universe is, they were rightly putting it, is Mm-hmm. this is how if we see that things are predictable, we Mm-hmm. can control them. Mm-hmm. And we similarly see that people are predictable, we can control them. And Mm-hmm. when we see that, feel that these laws of physics are, physical world is predictable, we want to control it and call it science. And Mm-hmm. so it comes from the idea, as Newton was himself a religious person. He Mm-hmm. wrote more about Christianity than he wrote about main science. Yeah. Uh, this is what I have wrote at length in my book too. Uh-huh. So similarly, जो दूसरे वो आपने देखा जहाँ से chaos theory शुरू होती है. Poincaré, Yeah, three body he problem. was an atheist. Mm-hmm. And Laplace. Laplace, he Mm-hmm. was an atheist Mm-hmm. who tried to look deeper into things and unsurface this uncertainty and Mm-hmm. blah, blah, blah. So I'm seeing it from different angle for the first time too, and I will try to write something about that. Mm-hmm. That is now at the back of my mind, Yeah. and it will very soon come in Okay. some form. Okay. Okay. So any other comment or question related to that? Yeah. Yeah. It said in the documentary that it's not possible to predict the economic patterns. Do you think that there is some pattern and some people know about it, or they've got the computational power and they don't want to share it with the other people? Do you think that is the case? I think it could be. It depends on the data. I think it all boils down to the data and the information, because I think a lot of things these days we are talking about in terms of information. That okay, this is the age of information. The more we have the information, the more we can control a system. So maybe some people have more control, but if you model it mathematically, then we have seen here that chaos is always there,
Okay, it's a part of any system. You can't avoid it. So I'm not sure whether they can control it or not. Yeah. Again, uncertain. आप माइक लीजिएगा. That it's not possible to control it. Oh, yes, but it depends for how much long. I mean, I think it will then, we can talk in that terms, that how long we can control anything. Yeah. As and, long as the system can predict Yeah. according to what we expected, but Yeah, but what you're saying is that it's inherent in the system. yeah, It will display chaos at some point. yeah, at some point. Yeah. The germs of chaos is always in some in the systems, in the mathematics. This is what at least mathematics is telling us. Layman के लिए, can you just briefly say कि mathematics है क्या? What are the basics of that? So देखिए मैथमेटिक्स की तो अगर हिस्ट्री इससे तो डिफरेंट है. Mathematics of chaos. मैथमेटिक्स ऑफ केओस तो यही है कि जैसे लप्लास से अगर हम शुरू करें, न्यूटन और लप्लास से शुरू करें. न्यूटन्स और लप्लास ने जो इक्वेशंस पहले बनाई शुरू में, उस वक्त उनको लगा ऐसा कि ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनसे हम बहुत सारे फिनोमेनास को अच्छे तरीके से मॉडल कर सकते हैं. और पहले फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लाइक टू बॉडीज सिस्टम, तो उसको तो बड़े आराम से किया जा सकता है, उसका एक अच्छा मॉडल बनाया जा सकता है. लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई तीसरी बॉडी हम लेके आते हैं, तो फिर वो जो 3 बॉडी प्रॉब्लम बन जाता है, उसको सॉल्व करना फिर प्रॉब्लम हो जाता है. क्योंकि जो 2 बॉडी प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा इक्वेशंस नहीं बनती, ठीक है, और उसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, तो फिर इजीली उसका एक मॉडल बनाया जा सकता है. लेकिन जब 3 बॉडीज़ थर्ड बॉडी ऐड होती है, तो इक्वेशंस एटलीस्ट कहते हैं कि 18 इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स डाल के और डिफरेंट वेरिएबल्स बना के 18 डिफरेंट इक्वेशंस बन जाती हैं. अब उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, और समटाइम्स उनमें से इक्वेशन क्या वो लीनियर होंगी, नॉन लीनियर होंगी, ये एक और प्रॉब्लम आ जाता है. तो उसमें पोनकरे ने शुरू में ये प्रॉब्लम उसको मिला. आई थिंक नॉर्वे या स्वीडन का जो किंग था उस टाइम पे, 1885 की बात है शायद, उस वक्त उन्होंने एक इनाम रखा था इस प्रॉब्लम के लिए कि अगर आपके पास कोई 3 बॉडी प्रॉब्लम हो तो इसका कोई सोल्यूशन कोई लेके आए, तो उसके लिए उन्होंने एक इनाम रखा हुआ था. तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया. पोनकरे ने भी उसी वक्त ये अपना एक सोल्यूशन सबमिट किया था. आइडिया ये था कि कोई ऐसा एक एनालिटिक सोल्यूशन बनाया जाए जो 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले. 3 बॉडी प्रॉब्लम का जिक्र इसमें हुआ था कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो 3 बॉडी की मूवमेंट्स और उनका फ्यूचर जो है उसके बारे में सर्टेनिटी के साथ हमें बता सके कि ये फ्यूचर में इसका बिहेवियर कैसा होगा, या इसकी शेप कैसी होगी, या इसका ट्रजेक्ट्री कैसी होगी, और किसी गिवन टाइम पे अगर हमें मालूम करना हो, पूरे सिस्टम को जानना हो, तो हम बता सकें. ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है. लेकिन अब पोइनकरे ने जब इसको देखा तो उसको आइडिया हो गया कि ये प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इक्वेशन ज़्यादा बन रही हैं, और इनिशियल कंडीशंस में ज़रा सी भी चेंजेस अगर की जाए तो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, ठीक है, और आगे चल के अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, और उससे सिस्टम समहाउ केओटिक सा हो जाता है. तो आई थिंक उसका जो मेथड था वो रिकर्सिव था. फिर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप एनालिटिकल सॉल्यूशंस पहले तलाश करते हैं, जनरल एनालिटिकल सॉल्यूशंस, अगर वो इस तरह पॉसिबल ना हो तो फिर उसके अल्टरनेट जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जाते हैं. उनका जो मेथड होता है उसमें यह है कि फिर आप बहुत सारी कंडीशंस लगा लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक हमने एक सॉल्यूशन इधर ये एक शो किया हुआ है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अब कंडीशन यही है कि किसी एक बॉडी को लेट्स सपोज स्टेशनरी कर दिया जाए और बाकी 2 बॉडीज़ को मूव किया जाए और फिर उसको प्रेडिक्ट किया जाए, या फिर सिंपल सा पाथ हो अगर उनका, तो इस तरह की कंडीशन इम्पोज करके भी 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. तो फिर आपको एनालिटिक्स से हट के फिर बहुत सारे डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है. तो और उसके लिए फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स बहुत सारी यूज़ होती हैं. ऐसा नहीं है कि 3 बॉडी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है बट जनरल सोल्यूशन नहीं है. इन जनरल सोल्यूशंस मीन के जो फॉर लॉन्ग टाइम प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर को भी, उस सिस्टम को भी, और
ज़्यादा केओटिक ना हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। तो आई थिंक पॉइंटकर को ये रियलाइज़ हो गया था जब उसने ये अपना काम किया था और शायद पब्लिश करने के लिए दोबारा एडिटर के पास गया, तो उन्होंने फिर दोबारा इसको जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको एक दफ़ा देख लें। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम जो है ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आगे चल के मेरे सिस्टम को या इसको बहुत ज़्यादा केओटिक कर देता है, ठीक है। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने बाद में पिछली सदी के मतलब 70s में फिर एड लॉरेंस ने फिर यही काम किया थ्रू कंप्यूटर, ठीक है ना। पॉइंटकर के टाइम पे तो कंप्यूटर नहीं था ना, तो उसने एनालिटिक और ये न्यूमेरिकल इस तरह के रिकर्सिव सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। उसने यही काम वेदर के लिए जब किया ना, तो फिर उसने देख लिया कि ज़रा सी स्मॉल चेंजेस से कर्व के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, जब हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो आपने ये बात नोट की होगी कि ये जो सब टाइटल्स थे ये ऑटो जनरेट हो रहे थे। शुरू में ये ठीक थे, ठीक है, बीच में केओटिक से हो गए, ठीक है ना, ये ओवरलैप नहीं हो रहे थे, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे थे, और एंड पे जाके ऐसा लग रहा था कि ये दोबारा जो है सिंक्रोनाइज हो गया। तो ये भी एक केओटिक प्रॉब्लम था जो हमने खुद भी शायद इस दौरान फील किया है। तो दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ऑटो जनरेटेड था, यस, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होता है जी 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 जी। तो एल्गोरिदम जो है वो फिर बाज़ दफ़ा इस तरह की मिस्टेक कर देता है, तो सिंक्रोनाइज भी नहीं हो जाती, ठीक है, यस। What scientists and mathematicians actually try to control? एक्चुअली न्यूटन और लप्लास से आगे बेसिकली वो दे वांट टू हैव ए डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, ठीक है। हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिससे हम एक किसी भी गिवन सिस्टम को समझ लें, ठीक है। उसके लिए फिर हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि वी वांट हैव डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अब डिटर्मिनिज्म का मतलब एक ये है कि कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जिसकी अगर हमें इनिशियल कंडीशंस या किसी एक गिवन टाइम पे कंडीशंस पता हों तो उनकी बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें कि ये फ्यूचर में कैसा होगा। ओके, मान लिया कि वो 2 वीक्स या 3 वीक्स या 4 वीक्स का प्रेडिक्ट करते हैं वेदर, तो कैन दे डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द वेदर और सम काइंड ऑफ थिंग? वो क्या कर सकते हैं? नहीं वो अब देखें, अब इस केओस की थ्योरी से हमें ये पता चला है कि एक्चुअली ऐसा नहीं किया जा सकता। जो इक्वेशंस हम बनाते हैं उनके अंदर स्मॉल कोई एक पैरामीटर की कोई स्मॉल चेंज भी आ जाए तो उससे वो सिस्टम जो है वो फ्यूचर में डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहता, काइंड ऑफ, आई मीन वो थोड़ा सा केओटिक हो जाता है, ठीक है। वैसे केओस के मॉडल्स भी डिटर्मिनिस्टिक ही होते हैं इन दैट सेंस कि वो इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि जो केओस है वो भी इक्वेशन से ही पता चल रही है, ठीक है, वो भी मैथमेटिक्स से ही पता चल रही है, इन दैट सेंस वो भी डिटर्मिनिस्टिक ही होती हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है इन मॉडल्स के अंदर, ठीक है। और केओस और रैंडमनेस भी के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। केओस और रैंडमनेस को भी सेम नहीं समझना चाहिए, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली सिंपल आंसर यह है कि वी वांट टू कंट्रोल द सिस्टम, वी वांट टू अंडरस्टैंड एनी सिस्टम एंड वी वांट टू प्रिडिक्ट एनी सिस्टम, ठीक है। और उसके लिए फिर हमें मॉडल्स चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। वो सिस्टम वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है, वो एक सोलर सिस्टम के हवाले से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं या सिमुलेशंस करते हैं, तो उन सिमुलेशंस में हमने कुछ नंबर्स सेट किए होते हैं ना पहले से, जिसकी बेस पे हम कर रहे होते हैं। कुछ कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस सेट करके हम उसको रन करते हैं, सिमुलेट करते हैं। लेकिन आगे चल के वो सिस्टम के अंदर क्या चेंज आएगी ये पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना, ठीक है। समटाइम वेरी स्मॉल, अच्छा वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ एक नंबर्स के ना डेसिमल्स में भी ज़रा सी भी स्मॉल चेंज आ जाए तो वो बज़ाहिर लगेगी नहीं कि ये कोई फ़र्क, कोई ये इतना एरर स्मॉल है तो इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन आगे चल के वो इम्पैक्ट होता है। न्यूटन और लप्लास के वक्त यही था कि उनको ये लगता था कि इस तरह के स्मॉल जो एरर्स हैं ना ये पूरे सिस्टम को लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉरेंस की फाइंडिंग के बाद ये पता चला कि ऐसा नहीं है। इसलिए वो एक ग्राफ था जिसमें हमने देखा था कि दोनों इनिशियल कंडीशन एक साथ साथ चलती हैं और सडनली
थोड़ी सी चेंज आने की वजह से पूरे ग्राफ जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, वेरी स्मॉल चेंज। हाँ, मैथमेटिशियंस को पता है कि मतलब कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, जी तो उन लोगों ने एंजाइटी का नाम दिया। देखें, अब एग्जाइटी इसमें इस सेंस में है एंजाइटी ये है कि हम जानना चाहते हैं और किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर जब केओस आ जाता है तो केओस से फिर यह कि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम हमारा इससे आगे नहीं चल सकता, देन व्हाट, ठीक है। फिर हम वही है कि अननोन डोमेन में चले जाते हैं कि इससे आगे का हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। अब उस एंग्जाइटी से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है एक आसान तरीका है गॉड नोज एंड गॉड विल हेल्प, ठीक है। तो फिर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम उसको सॉल्व करते हैं, और कुछ नई टेक्निक्स भी बीच में ले आते हैं। जैसे कि जब कंप्यूटर एज शुरू हो गई तो फिर हमें लगा कि ये जो ऐसी मशीन हमने बना ली है ना, ये हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम, जो ह्यूमन एरर्स जिसमें आ रही थी, उनसे हम बच जाएंगे इस मशीन की वजह से। लेकिन फिर हमें उधर से ही पता चला है कि हमारे यहाँ सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एआई के हवाले से कुछ लोग होपफुल हो रहे हैं इस एज में, अगर आप देखें तो, कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे बहुत सारे इश्यूज़ को ना रिजॉल्व कर देगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हुई है, और बल्कि इस दफ़ा तो ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो एआई बनाने वाले हैं वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। वही जो बता रहे हैं कि ये जो है ना, इट कुड बी डेंजरस, ठीक है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देगी, और हो सकता है कि ये इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाए कि ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए, ठीक है। तो अब देखें, इसमें भी फिर वही केओस और अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी आ गई है। इस हवाले से इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो काफ़ी पॉपुलर सी एक डिस्कशन होती है आमतौर पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? any idea? Tanya, what do you think about that? Do you want to say something? Okay. ओके, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो 3 बॉडी प्रॉब्लम है, इसमें जो 3 बॉडीज़ है, ये सारे इंटरडिपेंडेंट है? जी, ये डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं मूव करते हुए, इनकी आपस के बीच में पोजीशंस हैं, एक दूसरे की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो है, और अगर बाकी सिस्टम्स को बीच में से हटा देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर 3 बॉडी करते हैं, तो फिर ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक डीएक्टिव हो जाए तो? देखिए, अब अगर एक डीएक्टिवेट हो जाएगा तो उसको पहले आपको डिफाइन करने का पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। क्या उसको हमने स्टेबल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, या स्टेशनरी कर दिया? अगर वो स्टेशनरी हो गया है तो फिर बाकी 2 सिस्टम्स, अब 2 बॉडी सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि फिर ये इसका इम्पैक्ट नहीं है बाकियों के ऊपर, ठीक है। और कितना है फिर ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह के हर क्वेश्चन जो हमारा रेज होता है ना, इसको हम मैथमेटिकली फिर मॉडल करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे कि हम क्या ना क्या चाह रहे हैं, और फिर इसका मतलब मैथमेटिकली क्या होगा, ठीक है। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली क्या है, ठीक है। आप उसको स्टेशनरी कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, हाल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू नीड टू डिफाइन दैट, ठीक है। तो इसी तरह के जो डिफरेंट केसेस हैं, उसके लिए 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कि अगर आप 3 बॉडीज़ हैं, एक को स्टेबल कर दें और फिर रहता तो फिर भी 3 बॉडी है, तो इसको सॉल्व कर लें, तो कुछ सोल्यूशन उसके आराम से निकल जाएंगे। बट सारे केसेस में जनरल सोल्यूशंस फाइंड करना ये पॉसिबल नहीं है, इक्वेशन ज़्यादा हैं, पैरामीटर ज़्यादा हैं, तो फिर मॉडल करना मुश्किल होता है। अक्सर अगर आपने देखा हो कि बहुत सारी रील्स और मीम्स बनी होती हैं जिसमें एक सोलर सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त, पुराना सोलर सिस्टम तो मॉडल बहुत सिंपल होता था ना, कि जिसमें जस्ट सूरज है और बड़े आराम से मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स, कितना आसान था, प्रेडिक्टेबल था, ठीक है। और उधर से ही शायद ये एक आइडिया आया था कि शायद हम प्रेडिक्ट कर लेंगे फ्यूचर को भी। लेकिन अब जब मॉडल, हम जो लेटेस्ट मॉडल देखते हैं, उसमें देखा सूरज मूव कर रहा होता है, और ये जो बाकी प्लैनेट्स हैं ये भी एक स्पायरल वे में आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है। अब उसमें ज़रा सी कोई एक स्मॉल चेंज किसी एक में भी आ जाए तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मेसी और केओटिक हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल, यस। बट ये फैसिनेटिंग चीज़ ये भी है कि केओस और ऑर्डर का बीच में क्या रिलेशन है,
कैसे ये सिस्टम इवॉल्व होते हैं. दिस इज ऑलवेज लाइक इंटरेस्टिंग थिंग. जी श्योर. पहले कमेंट था. मुझे मेनली ये महसूस हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास असेंबली लाइन एक मॉडल था, असेंबली लाइन का मॉडल था, और वो एक बड़ा मॉडल था और एक बड़ा क्रूड मॉडल भी हम उसे समझ सकते हैं, और वो बहुत सिंपल मॉडल भी था जिसमें छोटी सी कोई जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं कि कोई बड़ा इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सकता था, थोड़ा सा कोई एरर बड़ा प्रॉब्लम पैदा नहीं कर सकता था. जो हम मुझे ये लगता है कि माइक्रो लेवल पे इसको स्टडी करते जा रहे हैं कायनात को, वो उसके अंदर घुस रहे हैं. सो हमें इस किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं. और ये जो जिस किस्म की आप इसे एंग्जाइटीज़ कहें, ये नई अननोन से, जब हमारा हर दौर में अननोन से वास्ता पड़ता है तो हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि जैसे इस वक्त हम रिएक्ट कर रहे हैं. वो हम अपने माइंड में एक छोटा सा, एक बड़े जंगल में एक छोटी सी पार्क बना के बैठे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार ये जंगल है, ये बहुत बड़ा है. और जंगल आप देख लें कि डिसऑर्डर का इस्तारा है, वही क्योस का इस्तारा है. सो जब हमारा एक नए जंगल से वास्ता पड़ता है, जैसे हमारा साइकोलॉजी में लाशऊर से वास्ता पड़ा था, तो हम हैरान हो गए थे. वो वंस अगेन वाज एक डार्कनेस थी जिसने हमें सराउंड किया हुआ है. एंड यही एंग्जाइटी हमारे सामने आई थी. मैं बाज़ वक़्त देखता हूँ तो मुझे ये ऐसे लगता है कि दुनिया कंप्यूटर के आने के बाद ही कंप्यूटर के आने के बाद ही ये चीज़ें हमारे सामने क्यों आ रही हैं. अब एआई एक नई एंग्जाइटीज़ लेके आ रही है हमारे सामने लेके आ रही है. उसमें ह्यूमन एरर तो नहीं होगा, लेकिन एरर जो होगा तो हो सकता है वो ब्लंडर ही हो जाए, क्योंकि वो सो ऐसा देखना मैथमेटिकली, इज इट करेक्ट द वे आई लुक एट थिंग्स? देखिए ये तो ज़्यादा मोर इंट्यूशनिस्टिक अप्रोच है और ज़्यादा फिलोसॉफिकल अप्रोच है. मैथमेटिकली तो फिर देखें, आपको प्रॉब्लम को ना हमें बहुत ज़्यादा वही रिडक्शनिज्म की तरफ पहले जाना पड़ता है. ठीक है ना. प्रॉब्लम को पहले उस पर कंडीशन लगा के रिड्यूस करके किसी एक लेवल पे आना पड़ता है, फिर उसको स्टडी किया जाता है. ठीक है. तो डोमेन्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है. अब जो माइंड और शऊर और लाशऊर की बातें हैं, अब मैथमेटिशियन इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. जो ही नई एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी हमारे सामने आती है तो वो एंग्जाइटी हमारे अंदर पैदा करती है. जी. तो मतलब इसी पिछले दिनों जो बात हो रही थी एथीज़म के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्लासिकल जो एथीज़म था वो बड़ी चीज़ों को स्टडी कर रहा था. बड़ी चीज़ों को स्टडी कर रहा. दे वर टॉकिंग अबाउट गॉड एंड एंजल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. और जो इस वक्त का लोगों को नज़र नहीं आ रहा वो बहुत माइन्यूट है. वो टेक्स्ट पे बात कर रहा है, वो हिस्ट्री पे बात कर रहा है, वो इस बात पे बात कर रहा है कि गॉड और लैंग्वेज कंपैटिबल हैं कि नहीं. इस किस्म के क्वेश्चंस उस दौर में या डॉक्ट्रिन्स या उस पीरियड में हमें इवन दसर के सामने भी नज़र नहीं आते. सो इस वक्त हम बहुत बारीकी से इसको मजीद स्ट्रक्चरल लेवल पे या एक माइक्रो लेवल पे. कनेक्टिविटी ओवर द इयर्स ज़्यादा बढ़ नहीं गई, क्योंकि पहले देखें हमारे सिस्टम बड़े लोकल होते थे. ठीक है. एग्जैक्टली. तो लोकल होने की वजह से सिंपल सिस्टम थे, एनालॉग थे, सिंपल थे. ठीक है. तो उसकी वजह से, लोकल होने की वजह से हमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी भी थी, सर्टेनिटी भी थी कि अच्छा यही हमारा स्मॉल सा लोकल सिस्टम है, उसकी बेस पे हम बता सकते हैं हमारा फ्यूचर क्या है. अब जैसे जैसे हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारा नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है और उसकी बेस पे एंग्जाइटी भी क्रिएट होती है. अननोन की फॉर्म चेंज हो रही है. एक नया अननोन हमारे सामने आया है जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, जान नहीं सके. तो दिस इज ऑल्सो कॉजिंग एंग्जाइटीज. और देखें ना, लैंग्वेज के इश्यूज भी अभी रिसेंटली यही बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किए. विटगेन्स्टाइन हो गया, इसी तरह. तो ये पहले इतनी डेप्थ में शायद इतनी स्टडी इस हवाले से नहीं हुई थी, कॉन्शियस और इस हवाले से कि लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट होता है. बस यह है कि वो ये अवेकनिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी. ठीक है. तो जो माइंड के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं हमारी, वो अब एक डिफरेंट वे से एक्टिवेट हो रही हैं. अब उसमें एंग्जाइटी कितना पार्ट प्ले कर रही है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली. क्योंकि समटाइम ऐसे लगता है कि वो जब फियर ऑफ अननोन आता है और कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो फिर हम फोर्स होते हैं कुछ नया करने के लिए. ठीक है ना. कुछ नया सोचने के लिए. ठीक है. उससे फिर हम कुछ नया कर भी लेते हैं. और मुझे लगता है कि वो जो ग्रैंड एक यूनिवर्स का हमारे सामने मॉडल था, दैट वाज ऑर्डरली. उसमें ऑर्डर हमें नजर आता था. जो क्लॉकवर्क. हाँ, क्लॉक. जो ही हम इसमें
घुसे हैं क्वांटम लेवल के पे उसके अंदर दाखिल हुए हैं तो इधर क्योस है। जी। जैसे हम जागते हैं क्योंकि हम ऑर्डर में चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो हम कॉन्फ्लिक्ट के घेरे में होते हैं, जी जी। और जब हम सोते हैं तो ख्वाब में हम क्योस के घेरे में होते हैं, उसमें चीज़ों में ऑर्डर नहीं है। यस 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 योर। सो ये दिस इज हाउ आई सी। क्वांटम का देखें, उस वक्त पॉइंकरे के टाइम पे आई डोंट नो, पॉइंकरे क्वांटम के वाले से भी कुछ काम मैं भी किया होगा, बट यह है कि केओस का प्रॉब्लम वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। न्यूटन के 2 बॉडी प्रॉब्लम से नेक्स्ट लेवल है, 3 बॉडी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आप क्वांटम लेवल के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे भी इस तरह के मॉडल स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट के हवाले से प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये क्वांटम लेवल पे नहीं है। हाँ, बट अब कभी कभी ऐसा लगता है कि लिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जैसे क्वांटम लेवल पे इनहेरेंटली, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हो सकता है उधर से वही चीज़ इवॉल्व होती हो, इमर्ज होती हो, वो जिसकी वजह से सिस्टम लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे भी अनसर्टन हो जाते हैं। तो चीज़ें लिंक्ड हैं। कम्प्लेक्सिटी इसी वजह से अब हमें ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो नॉलेज और कम्प्लेक्सिटी का एक इंटरेस्टिंग रिलेशन नज़र आ रहा है इसमें। तो और एंग्जाइटी, ऑफ कोर्स योर एंग्जाइटी। गुड, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।